So back to cricket now. With me, the voice of Maharashtra, Dr. Gauli sir, and Mazhar Khan, commentator, who done an outstanding job. Begin from the first ball in Bali Trophy. Today we are expecting Harish Pandya joint in evening, but from 12th of this month, Harish Pandya with us. Commentator More done outstanding job in 3 days. The voice of Vasai, thanks to our all commentary panel and umpiring panel, they are done outstanding job in Bali Trophy. Umpire Vilas Jadhav, umpire Faiz Rais, umpire Amish Salvi, umpire Farooq Bardi, umpire Shakil Koti, and umpire Gokul Patel. The match referee Ramesh Rais, excellent job so far in Bali Trophy, and all Pioneer organizing committee and all Pioneer team done outstanding job. Thanks to all. Shalim Khatib, Munaf Sheikh, Mateen, begin from the first ball in Bali Trophy. To openers on the ground, Bhavesh and Kalpesh. Is going to be Kumar, man from Temoli, open the bowling attack. Today's the Science Sport is one of the complete team. First ball, this time it's beautifully over the infield. Couple of bounces cross the extra cover boundary for 4. What a shot! Beautifully played. Gauli sir, what do you think about last stroke? High backleaf and firmly driven over the infield. अप्रतिम फटका बघायला मिळालेला अगदी इनफिल्डच्या वरून टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, कारण फील्ड रेस्ट्रिक्शन आहे, क्षेत्ररक्षण मर्यादा आहेत आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून हा फटका खेळलेला चेंडू गेला होता. डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमा पार चौकार. Here goes Kumar. This time chopped as ball straight to cover point, but enough time batsman gets one. So 1 more to total now. Score moves up to 5 for no wicket. चांगली सुरुवात एक बघायला मिळते. 5 धावा झालेल्या आहेत. Kumar ready to bowl now. Turn from VIP end. Facing him batsman Kalpesh. Goes to Kalpesh. Try to mighty blow. Beats him outside the off stump. Yusuf Rajasthani joined with us. Welcome. And today Munaf Sheikh look is a different. Beautiful wearing a over jacket and golden and black hairstyle. This time put away in the air, could be caught, man under it. Yes, he's out. सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, दुनिया ने चना गला प्यार दिया, शाम को तू किथे किदे नाल हुना, अखियां में फोटोआं बेकार दिया, डर जे लगदा ए दिल टूट ना जाए बेचारा, तेरे यार कथे मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार कथे मेरा तू ही है बस यारा. Wicket has gone for cheaply. Man out Kalpesh yet open his account, and 5 for the loss of 1 wicket. Real sport. देखिए आपके ढेर सारे मैसेजेस हैं. यही कारण है कि बाली ट्रॉफी में मेरा और साथी कमेंटेटर ज़्यादातर मोबाइल ऑफलाइन रखते हैं. इतने सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक वादा है कि ये अल्ताफ बाली तक पहुंचाए जाएंगे. सभी टीमों को ऑल द बेस्ट है. रनिंग कमेंट्री में इतने सारे मैसेजेस नहीं पढ़े जा सकते, मैं क्षमा चाहता हूँ. कुमार बॉस दिस टाइम नो स्ट्रोक ऑफर्ड. बॉल इज traveling to wicket keeper and there will be no runs. This is the good start from Mahendra Patil fam team, Science Sport Kharbaun.
This time a lovely looking drive. Fielder finds the ball at wide of long on. Fine shot indeed. I think Bhavesh, one of the high backlift batsmen, and that marks the end of the first over. His score is 6 for the loss of 1 wicket. हमारे स्पॉन्सर अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के गुलाम साबिर ने रियल स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है. गुलाम साबिर जी, आपका हार्दिक स्वागत है. पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते कुमारद्वारा, आणि जो निर्णय घेतलेला आहे महेश ठाकरे आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर योग्य वाटतोय, कारण पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि पॉवरफुल गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळाली कुमारद्वारा. फक्त 6 धावा दिलेल्या आहेत आणि एक महत्त्वपूर्ण सफलता मिळवून दिलेली आहे, अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेला आहे. देखिए भावेश जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खेलने का तरीका लग रहा है बैकलीफ को ऊंचा रख रहे हैं. कमाल का शॉट खेल के इब्तिदा की थी. महेश ठाकरे, आपको मैं बताता हूं कि ड्रॉ में ये बात हुई है, लोनार्ड के कैप्टन पे बैंड आया है समय ज़्यादा खर्चा करने के लिए. 30 मिनट से अगर ज़्यादा आपने वक्त लिया 6 ओवर के लिए, क्योंकि स्टॉप वॉच के साथ हमारे रेफरी और अंपायरिंग पैनल है, तो अगले मैच में अगर वो टीम जीतती है तो उसके कप्तान को नहीं खेलने दिया जाएगा. गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज करण को. करण मैन ऑफ द सीरीज रहे थे. नहीं, ये करण अलग है, वो बाएं हाथ के करण है. करण गुलवी की गेंद छोटी बैकलिफ से कवर ड्राइव लगाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पे 1 रन, 7 रन. लेकिन गवली सर, भावेश अब तक जो बल्लेबाजी कर रहे उन्होंने अपना क्लास जरूर जताया. अगदी बरोबर, एक चांगली फलंदाजी करतोय, कारण एक प्रेक्षणीय चौकारी मारला होता, त्यानंतर एक चांगला चेंडूचा सन्मान करताना दिसतोय, हे फार महत्त्वाचं असतं. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. सतीश चौधरी फैम टीम नाना स्पोर्ट और ओम साई ताडाली. नाना स्पोर्ट जब खेलेंगी तो सब बड़ी टीमें लगभग खेल लेंगी बाली ट्रॉफी में. करण, इस मरतबा बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का. अंपायर गोकुल पाटिल ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी, और तीसरी आंख फैज रईस. देखना है फैज रईस कुछ कह रहे हैं, विकेटों पे दौड़ रहे हैं. बल्लेबाज बहुत गहरी नजर. दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है. करण फ्रीट लेने जा रहे हैं. इस मरतबा फ्लैशी कवर ड्राइव करने की कोशिश, फिर नो बॉल. लेकिन ये नो बॉल किस लिए दिया अंपायर बताएं. क्या ये भी बीमर है? यस. तो ये गेंदबाज अब इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. और कितने रन आए इस गेंद पर, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर गई है और किस शक्ल में गई अंपायर गोकुल पाटिल. 22 का इशारा अंपायर का. यस, 5 रन स्कोर में बढ़ते हुए कुल मिलाकर. देखिए अभी भी रिव्यू लिया है, बीमर का रिव्यू लिया है वहाँ पर, और अंपायर टीवी अंपायर अमित सालवी फैसला करने जा रहे. ये आविष्कार टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया है. बहुत कुछ अल्ताफ बाली ने लाया है, लेकिन ये चर्चा होती है हमेशा गौली सर, वो बीमर था, कौन बोलते नहीं था. अल्ताफ बाली ने सारे किस्से को खत्म कर दिया. ॲब्सोल्युटली ट्रू. नक्कीच एक नाविन्य या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळते. हा एक आविष्कार आणि एक LED स्क्रीनचा आविष्कार, जे फलंदाज किंवा खेळाडू LED स्क्रीनवर निघतायत, हा एक नाविन्य यावर्षी बघायला मिळते. आणि 8 मॅजिक बॉक्स यावर्षी आपण पाहतोय. यस, बीमर है, रिव्यू जाया गया अब साइंस स्पोर्ट्स का, और वो गेंदबाज इस मैच में अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. टीवी अंपायर अमित सालवी का कहना है बीमर है. एक ही रिव्यू था, वो अब जाया गया है. रनआउट का रिव्यू बचा है उनका. दोनों टीमों को एक रिव्यू दिया गया है, रनआउट का और बीमर का. अजूनही यानंतर फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिट असणार आहे, लक्षात घ्यायचं आहे. फ्री हिटपासून आपण वाचू शकणार नाही आहे.
यस, फ्री कंटिन्यू। आप देखना है कि किसकी करनी और किसकी भरनी। बीमर कर बैठे वहाँ पर गेंदबाज करण, और गेंदबाजी को अब बुलाया गया उनकी जगह ऋषिकेश को। गलती करण की और गेंदबाजी करने आ रहे हैं ऋषिकेश। सामना कर रहे हैं बैट्समैन भावेश। देखना है दोनों अंपायर्स क्या चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यस, मेरे ख्याल से चर्चा, मेरा अपना मानना इस बात पे हो रही है कि जिस तरह की फील्डिंग थी उसी तरह की रखी जाए। ऋषिकेश राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, बढ़िया गेंद बीट किया वहां पर बैट्समैन को। और हमसे जुड़ चुके हैं यंग डैशिंग और डायनामिक कमेंटेटर और क्रिकेटर शाहिद खान। आज अलग अंदाज में उनको आखिरी मुकाबला खेलना है। ऋषिकेश इस मरतबा स्लॉग स्वीप, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन नहीं पकड़ पाए कैच। वहां पर अक्षय थे, वहां पर एक कैच जरूर लिया लेकिन एक कैच छोड़ दिया। गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग स्वीप करना चाहता बीट हुए बैट्समैन कल्पेश सीनियर। अच्छी वापसी की है ऋषिकेश ने करण के बैंड होने के बाद इस मैच में। ऋषिकेश इस मरतबा लॉफ कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। पाहू शकता आपण स्लॉग सेव केलेला आहे। इस मरतबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, 1 रन बना है। मिसफील्ड, गेंद पीछे की ओर सरक रही है और ये देखिए 1-2 का 4। यहाँ पे 1 रन था, वहां 4 रन दे डाले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। महेश ठाकरे चिंतित नजर आ रहे हैं जिस तरह से पिछले ओवर में 17 रन रियल स्पोर्ट्स ने बना दिए हैं। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति स्कोर है 23 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अंजुमन के कप्तान शहबाज शेख हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है। नाना स्पोर्ट टेमगर सतीश चौधरी फैम टीम और ओम साई ताडाली। ये आप देख सकते हैं पानी पीते हुए रमीज रईस। O2 लाइफ, पानी पियो और तंदुरुस्त भरी जिंदगी जियो। फैयाज अंसारी का यही नारा
अक्षय इस मरतबा छोटी बैकलिप से डिफेंड किया था बॉलर की तरफ, कोई रन नहीं। खारबावरून ऋषभ यांनी साई स्पोर्ट खारबाव संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे भावेश. इस मरतबा धीरे से गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए बल्ले को नीचा करके 1 रन बनता हुआ स्कोर में 24 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे. 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे कल्पेश सीनियर. बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर से गवलीसर स्लॉक स्वीप खेलने की कोशिश की थी. पडल्यानंतर थोडीशी बाउन्सी झाला होता आणि स्लॉक स्वीप खेळण्याचा जो प्रयत्न केला होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में और गेंद इस वक्त लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार. अब बल्लेबाज ने क्या इशारा किया अंपायर को हम देखना चाहेंगे. रिव्यू लिया है बीमर के लिए. फील्डिंग साइड का तो रिव्यू जाया गया, अब बल्लेबाज ने लिया है. ये देखिए ये कमाल का क्रिकेट चल रहा है. अब हर कोई ध्यान रख रहा है कि उसको कब क्या करना है. आणि पंचांचा इशारा या ठिकाणी होते. चेंडू हा बीमर आहे. बीमर गेंद है. अंपायर कह रहे हैं कि बीमर है. यस ये रिव्यू सही आता हुआ. और क्या बात है, बल्लेबाजी की जो साइड है उनको इतना यकीन था बैट्समैन को, इसलिए रिव्यू लिया. ये रिव्यू उनका बचा हुआ रहेगा. और फ्रीट का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक भट्टी का. अक्षय इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है स्वीप के अंदाज में डीप मिड विकेट पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर 30 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अक्षय बहुत अच्छी गेंद घूम के मारने की कोशिश. गेंद को फ्लाई स्लिप पे उठाया. लेग बाय का इशारा अंपायर का. तीसरा ओवर चल रहा है. स्कोर है इस वक्त 33 रन. रियल स्पोर्ट्स 31 रन. रियल स्पोर्ट्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई साइंस स्पोर्ट खारबाव. नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन और ओम साई तडाली के कैप्टन. तिसऱ्या षटकात 31 धावा झालेल्या आहेत. म्हणजे एक चांगली धावसंख्या बघायला मिळते आतापर्यंत. इस मरतबा खींच के मारा है. गेंद मैदान के अंदर, कोई गलती नहीं की कुमार ने. डीप वाइडिश मिड विकेट पर धीमी गेंद थी. आउट हो गए बैट्समैन कल्पेश सीनियर.
देखना है अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं वहाँ पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने इस सीज़न में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बैट्समैन को बहुत कम मौके दिए हैं। पहली गेंद धीरे से गेंद को टर्न करते हुए ऑन साइड में छोटी बैकलिफ से 1 रन खाता खोला वहाँ पे जयेश ने। कुल स्कोर रियल स्पोर्ट्स का 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन और ओम साई ताडाली के कैप्टन मैच रेफरी रमीज रईस की तरफ से मैं अनाउंस कर रहा हूं कि आपको 5वें ओवर के समाप्ति के बाद टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स। इस मर्तबा खींच के मारा है, कमाल का शॉट, मैजिक बॉक्स के ऊपर से मैजिकल स्ट्रोक, 6 रन। क्या शॉट है। दिल में मेरी ख्वाब तेरी तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। बुरा है जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे, अगदी खेचून मारलं होतं आणि डीप मिड विकेटच्या बाहेर जाणारा भावेश याच्या बॅटमध्ये गेला हा षटकार, सनसनीत षटकार। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 38 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पे, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी पोजीशन है रियल स्पोर्ट्स की एक बड़ी टीम के सामने। सिद्धार्थ फिर से खींच के मारा है, डाउन द ग्राउंड, बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए लगभग 3 रन बचा लिए वहां पर कुमार ने, मैन फ्रॉम टेम्बोली। कमाल की फील्डिंग, कमिटमेंट बहुत अच्छा था, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था, डाउन द ग्राउंड। इस तरह के शॉट्स गौली सर इतने आसान नहीं रहते। सिद्धार्थ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए जयेश के लिए। इस मरतबा हाफ वाली पिलिया, गेंद को खेल दिया गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं, तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर। 42 रन हो चुके हैं और विकेटें गिरी है 2। कमाल की अब बल्लेबाजी हो रही है और बड़ी टीम साइंस स्पोर्ट खारबांव जो इस सीज़न में सेमीफाइनल तक पहुंची हुई टीम है, इस वक्त कठिनाइयों में। वसीम अंसारी ने वाकई में एक अच्छा कॉम्बिनेशन लाया है बाली ट्रॉफी में। इस मरतबा हुक किया, मिस हुआ है, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर। और ये देखिए मौका भी वहां पे, 2 रन ज्यादा दे डाले, एक और चौका। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। भारतीय फिल्मों को हम देखते हैं, उनके संगीत को देखते हैं तो
गीत का रे, तेरा बिस्मिल हो गया। बिस्मिल कहते घायल होने को। खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं अक्षयद्वारा. दुसऱ्यांदा असं होतंय आणि ज्या ठिकाणी खरं तर 2 धावा, त्या ठिकाणी 4 धावा बोनसच्या रूपाने बहाल केल्या जात आहेत. आप दबाव में आती हुई और थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कप्तान महेश ठाकरे। सिद्धार्थ के गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, खुल गए थे बैट्समैन। वाइड यॉर्कर थी, बिल्कुल करीब से जाते हुए स्टंप्स के। 4 ओवर की समाप्ति। रियल स्पोर्ट्स का रेयर क्रिकेट हम देख रहे हैं। 47 रन बने, 2 विकेटें गिरी। अगले दौर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर से। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। 47 धावा झालेल्या आहेत, 2 बाद 47 आणि दोघांमध्ये एक पार्टनरशिप बघायला मिळते. भावेश आणि जयेश. एक मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल तर हे फार महत्त्वाचं असतं. पार्टनरशिप, भागीदारी आणि वन हॅज टू प्ले अँकर रोल. कोणीतरी किल्ला लढवणं आणि तीच कामं आज सलामीवर भावेश करतोय. क्लास क्रिकेटही बघायला मिळते आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. अक्षय येतोय दुसरं षटक घेऊन आपल्या स्वतःचं. फुलटा चेंडू मात्र फायदा उचलता आलेला नाही आणि चेंडू जाते लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. वाईच्या रूपाने मिळाल्या 4 धावा. बिल्कुल, भूल तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस मैच में फील्डरों से, विकेट कीपर और फील्डरों से बहुत भूल हो रही है। अक्षय यावर मात्र बॅटला स्पर्श होतोय आणि यष्टीरक्षक कुठल्या प्रकारची चूक करत नाहीये. भविष्याची खेळी संपुष्टात. रात नशीली मस्त तुम्हारे सोळा धावांची खेळी करून भावेश बाद झालेला आहे. मात्र आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे. 50चा आकडाही पार केलेला आहे कारण 51 धावा झालेल्या आहेत. दोघांमध्ये एक पार्टनरशिप बघायला मिळाली होती जयेश आणि भावेशमध्ये. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. धावसंख्या 51. 51 3 बाद 51. आझार येतो खेळण्यासाठी. नक्कीच वसीम अन्सारी यांच्या संघाने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजीला प्रारंभ केला आणि एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते. 51 धावा. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे. याचप्रमाणे धावसंख्या झाली तर 60चा आकडा सहजगत्या पार होईल. अक्षय याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेलं आहे. टर्न केलेल्या चेंडूला कुठलाही क्षेत्ररक्षक मिडॉनला नाहीये. मात्र डीप मधून क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय महेश ठाकरे लॉंग ऑन मधून. तोपर्यंत मात्र एकच धाव घेण्याची संधी मिळते अझरियास आणि एका धावेने रिअल स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 52. 52. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. 3 बाद 52. साई स्पोर्ट खारबा विरुद्ध रिअल स्पोर्ट्स या 2 संघामधील सामना. नाणेफेक हरल्यानंतर वसीम अन्सारी फॅम टीम रिअल स्पोर्ट्स संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केलेला आहे आणि आतापर्यंत एक चांगल्या स्थितीमध्ये हा संघ आहे. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या आहे 3 बाद 52. अक्षय याला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न. एक चांगला चेंडू म्हणता येईल. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे.
धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे 52. 52. बाली ट्रॉफी 2019 या स्पर्धेचा 7वा दिवस आणि 7व्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. पुन्हा बॅक टू बॅक लागोपाठचा हा दुसरा डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू. आणि जेव्हा अशा प्रकारचा डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू जातोय तेव्हा संघावर एक मानसिक दबाव निर्माण होतोय. जयेश लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट खेळतोय, निर्धाव खेळतोय. अक्षय कमबॅक करताना फटका खेळलेला आहे, मात्र चेंडू हवेत आहे. व्हॉट अ कॅच. जाऊन हा झेल घेतलेला आहे वीरेशाने. अप्रतिम झेल. एक क्षण असं वाटलं की झेल घेऊ शकणार नाहीये, मात्र शेवटच्या क्षणी मात्र झेल घेतलेला आहे आणि महत्त्वपूर्ण सफलता मिळालेली आहे. जयेश याने एक निराशा केलेली आहे, कारण लगभग 2 चेंडू डॉट खेळला होता आणि तिसऱ्या चेंडूवर थोडासा फ्रस्ट्रेशनमध्ये येऊन फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न होता आणि त्यामध्ये जयेश बाद झालेला आहे. चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या 52. या षटकामध्ये अक्षयाने अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. फक्त 5 धावा दिलेल्या आहेत. या षटकात फक्त 5 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केले अक्षयाने. महत्त्वपूर्ण अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल या षटकामधली. सिद्धार्थ यावेळेला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र स्वैर आहे, कारण उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते आणि अवांतर धाव्याने धावसंख्या वाढते रिअल स्पोर्ट्स संघाची 53. 14वी ही अवांतर धाव आहे, म्हणजे 14 एक्स्ट्राच धावा दिलेले आहेत. सिद्धार्थ त्याला पुन्हा स्लॉक स्लिप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आहे शॉर्ट मिड विकेटला. पहिली धाव वेगात पण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र क्रीजमध्ये फलंदाज सुखरूप पोहोचतोय. लेग बाईचा इशारा येतोय. 2 धावा मिळत आहेत आणि धावसंख्या वाढते ती रिअल स्पोर्ट्स संघाची 55. 55. 4 फलंदाज बाद झाले आहेत. 55 धावा आणि अंतिम षटक हे मार्गस्थ आहे. सिद्धार्थ लोअर फुलटा चेंडू फटका खेळला, हवेत खेळलेला फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नव्हता. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या होते 57. 6व्या षटकाला प्रारंभ झालेले 57 धावा झाले. 4 बाद 57 अजून चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू सरळ जाते तो डीप मिड ऑनला. थोडीशी वेगळी रणनीती बघायला मिळते. एकेरी दुहेरी धावा घेतल्या जातात. क्रिकेटमध्ये जी लाईफलाईन ज्याला संबोधलं जातं त्याचा वापर केला जातो. एकेरी दुहेरी धावा घेतल्या जातात. नाना स्पोर्ट्स संघ कर्णधार तसेच ओमसाई ताडाली दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉस बॉक्समध्ये बसायचं आहे. यावेळेला मात्र शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे 58. 58. सिद्धार्थ त्याला फुलटॉस चेंडू आणि स्वंग केलेला आहे आणि चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटका. लोगों को मेरा नजर हम मगर देखो तो
खुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी ये दोस्ती चौसष्ट धावा झालेल्या आहेत. 64. सिद्धार्थ मागणा ठरतोय षटकामध्ये आणि अराउंडी लेग त्रिफळाची झालेल्या क्लीन बॉल. मैच रेफरी मैं आतिश पाटिल और शहबाज शेख अंजुमन के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. आतिश पाटिल जी, मोस्ट वेलकम सर. टॉस बॉक्स में आपका स्वागत है. अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख, आपका भी इस्तेकबाल है. आदेश पाटिल हैं हमारे साथ और शहबाज शेख साहब हैं. मोस्ट वेलकम आदेश जी. देखिए सिक्का दिखा रहे हैं रमीज रईस, सरपंच और जेडपी. आया क्या है? जेडपी. कल से हम देख रहे हैं जेडपी ज्यादा आ रहा है. ये सिक्का बतौर यादगार गणेश पाटिल को आपको देना है. आइए हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं शहबाज शेख के हाथों से. पंचायत समिति सदस्य मुशीर नाचन स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर. भारत गैस कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंचकर का ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं. रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी और मनसब मुल्ला की ये देन. दवाओं का एक ही मरकज़ और रियल स्टील की तरफ से दिया जाने वाला वसीम अंसारी का एक कैप सर पे हम रख रहे हैं. आदेश जी और शहबाज आपका शुक्रिया. मैच रेफरी रमीज रईस, थैंक्स. गणेश पाटिल, आपको मैं कहता हूं कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, लेकिन ये जो क्रिकेट का इतना बड़ा धमाका अल्ताफ बाली, अजमल नासिकर, शाहिद पापा और पायनियर ने किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. हर साल कुछ नया नया करके अल्ताफ वाले अपना नाम भी ऊपर कर रहे हैं और ट्रॉफी का भी नाम बड़ा होते जा रहा है. इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीम को चांस भी देते हैं खेलने के लिए. आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम बैटिंग करना चाहूँगा. कारण बता सकते हैं? कारण यही है कि अभी जो 2-4 टीम्स देखे चेसिंग में हड़बड़ा रहे और चेसिंग नहीं हो रहे, इसके लिए हम पहले बैटिंग करके सामने वाली टीम पे प्रेशर डालना चाहूँगा. आप एक रनर से 6 नंबर पर रैंक कर रहे, तो टीम क्या पूरी ताकत के साथ आई? हाँ, पूरी टीम है क्योंकि बाली ट्रॉफी है तो कोई पीछे नहीं रहना चाहेगा और सब प्लेयर खेलने चाहेंगे. इस ग्राउंड पे अल्पेश चौधरी के बहुत अच्छे रिकॉर्ड है. किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? अल्पेश चौधरी तो हमारा ऑलराउंडर प्लेयर है, उसको मैं ऊपर से ऊपर भेजने की कोशिश करूँगा. 6 ओवर में कहाँ तक देखते हैं आप? 6 ओवर में 70+ तक जाना चाहूँगा. ऑल द बेस्ट. दत्ता पवार, आप दूसरा मैच खेल रहे, पहला मैच तो खेल चुके, क्या टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करते थे.
लेकिन अब आपको फील्डिंग दी गई। ये बताइए कि सामने की टीम एक मर्तबा के रनर से इस सीज़न में बड़ी टीम है, कोई मानसिक दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं है, हम तो फ्रीली खेल रहे हैं और हम लोग पहली बार ये बाली ट्रॉफी खेल रहे हैं। हम कोई दबाव में नहीं खेलने वाले, हम बाली ट्रॉफी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपना नेचुरल गेम खेलने जा रहे हैं, तो कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 60 के अंदर रोकने चाहेंगे हम लोग। कौन से गेंदबाज है जिन पे दत्ता पवार डिपेंड कर रहे हैं? मनीष है, अजय है, श्री कृष्णा है, महेश है। अपेक्षा करें कि कांटे की टक्कर हो रही? 100%। All the best. The news from the toss box is Nana Sport won the toss and they decided to the bat first. Is back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। श्रोताओं, आप देख रहे हैं आज के दिन का दूसरा मुकाबला रियल स्पोर्ट्स का रियल क्रिकेट और साइस स्पोर्ट्स खारबाव के बीच। रियल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 65 रनों का लक्ष्य रखा है। देखना है किस तरीके से साइस खारबाव इस रनों को चेस करती है। ये देखिए शाहिद खान एलईडी स्क्रीन से टीम निकलती हुई, बहुत खूबसूरत नजारा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए इस वक्त 65 रनों की चुनौती देखना है। साइस स्पोर्ट्स खारबाव के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। किस तरीके से अब रियल के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिखाया है, देखना है गेंदबाज अब क्या करते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही थी, हालांकि भावेश ने 16 रन बनाए। आज एक चीज़ तो है यहाँ पर, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो छोटी टीमें थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नामचीन खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 30 मिनट का समय, इस बात को ध्यान रखें कि 30 मिनट में आपको आपके 6 ओवर पूरे करने हैं, अथवा पेनल्टी के तौर पर आपके कैप्टन को बैन किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो सो प्लीज़ सभी टीमें हमें कोऑपरेट करें समय के मामले में। आज कई अहम मुकाबले, टफ मुकाबले खेले जाने हैं। अगला मुकाबला नाना स्पोर्ट्स नाना और ओम साई ताड़ाली के बीच। पासष्ट धावांचं लक्ष्य आहे महेंद्र पाटील फॅम टीम साई स्पोर्ट खारबाव संघासमोर। सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आलेली आहे। प्रणय त्याचबरोबर कुमार। गौली सर, अगर हम देखें तो ये दोनों जो बैट्समैन हैं इन्होंने अच्छा प्रभावित किया इस साल साइस स्पोर्ट्स के लिए। प्रणय ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और कुमार ने भी। कुमार टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक बहुत अच्छे खेलते हैं, मैंने देखा इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर स्ट्रोक, स्क्वायर कट बहुत अच्छा खेलते हैं। प्रणय ऑन साइड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। अगदी बरोबर शाहिद खान हे दोघांकडे नजर जर टाकली प्रणय आणि कुमार दोघांनी ग्रामीणमधून जरी खेळताना सुद्धा किंवा सिटीमधून खेळताना एक चांगला परफॉर्मन्स दाखवलेला आहे। पहला ओवर लेकर शमीम, एक्सपीरियंस कंपेनर, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के लिए तैयार। समय का ध्यान रखिए, 30 मिनट का समय दिया है, अथवा पेनल्टी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिए पूरा। सो प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करें। मैच का इशारा अंपायर्स गोकुलदास पाटिल, फारूक बर्डी, फैज रईस। मैच के तीनों अंपायर्स शमीम टू प्रणय।
शॉट गेंद बैट फुट पे गया, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। पंच केला होता बॅकफुटला जाऊन आणि डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा सनसनी चौकार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, डैशिंग अंदाज साइज खारबाव का। इस बीच गेंद देखना है, गेंद हवा में, वहां पर मौका बन सकता है और इसी के साथ बड़ा विकेट पुरने। पहला विकेट पुरने आउट होके पवेलियन वापस जाते, केवल 4 रन का योगदान उन्होंने अपने टीम के लिए दिया। क्या कहेंगे गौली सर, बड़ा विकेट, इन फॉर्म बॅट्समन आउट होके वापस जाते हुए। अगदी बरोबर, कारण बिग ब्लो म्हणता येईल, एक मोठा धक्का म्हणता येईल। पहिल्या चेंडूला एक चांगला चौकार मारला होता, त्यानंतर पुन्हा लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा जो प्रयत्न केला होता, टायमिंग बरोबर झालेलं नव्हतं आणि डीप मिड ऑनला एक चांगला झेल, आणि ज्या विकेटची खरं तर आवश्यकता होती रिअल स्पोर्ट संघाला, ती विकेट पहिल्या षटकामध्ये प्राप्त करून दिलेली आहे। शमीम फ्लाइट रखा था, घूम के खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। शमीम की गेंदबाजी में अगर हम देखें तो गति कम है, लेकिन उनकी जो लाइन रहती है, लेंथ रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। गौली सर, आपने देखा कि पहली गेंद शॉट करने के बाद अब लगातार गेंदों को फ्लाइट दे रहे हैं आणि प्रत्येक चेंडूमध्ये थोडासा बदल करताना दिसतोय, आणि एक चांगला गोलंदाज ज्याला म्हणावं, ज्याच्या प्रत्येक चेंडूमध्ये बदल असतो, तोच खऱ्या अर्थाने एक चांगला गोलंदाज म्हणता येईल। शमीम टू कुमार, शॉट गेंद, घूम के खेलने की कोशिश हवा में, और इसी के साथ दूसरा विकेट। अब कुमार भी आउट होकर वापस जाते हुए कठिनाई में हम कह सकते हैं इस वक्त खारबाव स्पोर्ट्स। आलेलं नाही, खरं तर शॉर्ट बॉल होता आणि हुक करण्याचा जो प्रयत्न केला होता, मात्र स्क्वेअर लेगला एक चांगला झेल आणि बॅक टू बॅक दुसरा धक्का म्हणता येईल। आणि आता मात्र नक्कीच मानसिक दबाव वाढणार ते साईस्फोल खारबाव संघावर, कारण प्रणय बाद झालेला आहे, त्यानंतर कुमार बाद झाले, सलामीची जोडी ही डगआउटच्या आश्रयाला। बिल्कुल, अगर हम देखें तो दोनों ओपनर्स यहाँ पर पवेलियन लौट चुके हैं। प्रणय ने 4 रन बनाए, कुमार बगैर कोई रन बनाया है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि दबाव, क्योंकि ओपनर्स पे बहुत को डिपेंड रहता है चेसिंग के मामले में। अगर हम देखें हो सकता है, लेकिन अगर आपके ओपनर्स यहाँ पर फ्लॉप हुए और आपके अगर विकेट गिरे तो दबाव मिडिल ऑर्डर में भी आ जाएगा यहाँ पर। और वही कुछ अब दबाव की स्थिति दोनों बैट्समैन महेश ठाकरे और करण पाटिल। शमीम बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद पे चौका लगने के बाद दूसरी गेंद पे हमने देखा विकेट, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पे विकेट। लाजवाब गेंदबाजी पावर प्ले में शमीम। हाफ वॉली की गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद वाइड लॉन्ग बाउंड्री के बाद 4 रन। में ले ले मेरी जान,
प्ले गौली सर, गेंद के मैरिट के ऊपर जाके बल्ले को रोल किया और यहाँ पर बताया क्लास झलकता हुआ करण की बल्लेबाजी में। स्कोर इस वक्त 8 रन पहली ओवर का खेल चलता हुआ और हम कह सकते हैं कि अब करण का कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ। फिर से इस बीच गेंद सीधे बल्ले से बहुत ही तेज ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है, देखना है क्या गेंद बाउंड्री के बाहर। यस, 4 रन। करण क्लासिक स्ट्रोक। ये रहता है पावर प्ले की बैटिंग गौली सर। पावर प्ले में आपको ताकत से कम और दिमाग से ज़्यादा खेलना होता है। यही टेक्निक हमने देखी कि करण ने दोनों ही गेंदों पे की। पहली हाफ वॉली थी, इनसाइड आउट खेला, दूसरी सामने थी, सीधे बल्ले से खेला। तो इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर साइस स्पोर्ट्स खारबाव। अप्रतिम अप्रतिम फलंदाजी म्हणता येईल, कारण पहिला इनसाइड आउटचा फटका आणि दुसरा फटका डाऊन द ग्राउंडचा फटका आणि क्लास क्रिकेट बघायला मिळते। क्लासिकल संगीत ऐकायला खूप बरं वाटतं आणि क्लास क्रिकेट बघायला खूप बरं वाटतं। नक्कीच करणच्या माध्यमातून एक कलात्मक क्रिकेटचा आविष्कार आणि 2 सदाबहार चौकार। बिल्कुल गौली सर, 2 बेहतरीन चौके और मैच में वापसी। ये रहता है बड़ी टीम का क्रिकेट। आपके अगर विकेट गिरे तो दूसरा बैट्समैन दबाव नहीं लेता, और यही था। हमने देखा कि करण ने जो 2 स्ट्रोक लगाए बहुत ही दिलकश थे, बिल्कुल दबाव नहीं था उनके बल्लेबाजी पे। इसीलिए कहते हैं हम कि दबाव की स्थिति में जो बैट्समैन निखरता है वही यहाँ पर चमकता है, और वही करण अब चमकते हुए। लेकिन स्ट्राइक है एक्सपीरियंस कंपेनर महेश ठाकरे, एक ऐसा बैट्समैन जिन्होंने कई साल भिवंडी के लिए क्रिकेट खेला और बहुत बढ़िया अराउंड परफॉर्मेंस रहा। अब साइस स्पोर्ट्स खारबाव के लिए खेल रहे हैं और इस साल देखना है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अब इस अहम मुकाबले में बाली ट्रॉफी में किस तरीके से खेलते हैं। दूसरा ओवर लेकर लैलेश बैट्स, बॉलिंग फिगर टूट चुका है आज। इस बीच अगेन स्विंग किया हवा में, जोखम, और इसी के साथ महेश ठाकरे की बारी समाप्त। क्या कहेंगे गौली सर, धीमा किया था हाथ को रोक के और पहली गेंद आप खेलने आए और उस पर बड़ा स्ट्रोक, बड़ा विकेट। नक्की स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मात्र एक सोपा झेल, सहज सुंदर सोपा झेल। मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मात्र डीप मिड विकेटचं क्षेत्ररक्षक येऊन चांगला झेल घेतोय। ज्या विकेटची खरं तर आवश्यकता ती प्राप्त केली। आता मात्र साई स्पोर्ट खारबाव संघ अडचणीत जाणार आहे, कारण कॅप्टन कर्णधार महेश ठाकरे बाद झालेले। सुरुवातीला 2 मोठे धक्के सलामीवर बाद झाले होते, लवकर बाद झाले होते पहिल्या षटकामध्ये, आणि दुसऱ्या षटकामध्ये या ठिकाणी पाहतोय लैलेश याला पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते। आणि शाहिद खान आपण पाहतो की पहिल्या चेंडूवर जेव्हा सफलता मिळते तेव्हा गोलंदाजाचं जे मनोधैर्य असतं ते जबरदस्त वाढत असतं, आत्मविश्वास वाढत असतं आणि संघामध्ये उत्साह निर्माण होत असतो। बिल्कुल, अगर जैसे जैसे विकेटें मिलेगी टीम का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंट हाई होता है तो एक अच्छा मुकाबला देखने को। कल हमने देखा कि जिस तरीके से जेबी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने पॉइंटर के सामने गेंदबाजी की, उनका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा था, लगातार वो मैच में थे, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। कल हमने देखा ट्रिपल एस नेटवर्क का मुकाबला, दिनेश कुक्से के सामने एक छोटे टोटल में क्या फाइट किया था उन्होंने। दिनेश कुक्से को लोहे की चने चबवाए थे 38 रन बनाने के लिए, जहां पर उनकी 7 विकेटें गंवाई थी। तो ये रहता है क्रिकेट, क्रिकेट में फाइट होना चाहिए, क्रिकेट में जिद्दीपन होना चाहिए। हफौरी की गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया, वहां पर कारपेट के सहारे करण ने 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर इस वक्त 13 रन। एवरेज को अगर हम देखते हैं यहाँ पर गौली सर तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट, अगर आपकी शुरुआत के 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए तो यकीनन प्रेशर, दबाव थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। और वही दबाव हमने देखा कि किरण अच्छा खेल रहे थे, लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उन्होंने सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया, मौका दिया अब नए बैट्समैन हर्षद। एक मात्र करण आपला कास दाखवताना दिसतोय। लैलेश धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से इस वक्त स्क्वायर कट करना चाहते थे, अंदरूनी सिरा गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ, 1 रन जरूर मिला। स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पे साइस खारबाव 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। 11 का रन रेट है कोहली सर, और पहले ओवर में हमने देखा कि 12 रन बने, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट। अब लैलेश की अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पे विकेट लेने के बाद अभी तक उन्होंने देखे तो 2 गेंदों पे सिर्फ 2 रन दिए। इन देखना है किरण अभी भी क्रीज पर है। करण ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक, व्हाट अ मैग्निफिसेंट, 6 रन।
के गवली सर ओव्हर पिच गेंद और बहुत बढ़िया स्ट्रोक. नक्कीच ओव्हरपिच चेंडू होता आणि हा बॉल घेऊन लॉफ्ट केला होता. लॉंग ऑन सीमारेचा बाहेर जाणारा हा षटकार. लैलेश फुल टॉस, गेंद फायदा नहीं उठा पाए, काफी तेज गई है, मौका बन सकता है लेकिन मौका गवाया. ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि किरण एक ऐसे बैट्समैन है, करण एक ऐसे बैट्समैन है जो फॉर्म में भी है और लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. मौका था, आपको हाफ चांस में फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ता है गवली सर जब आप बड़ा मुकाबला खेल रहे हो, बड़ी टीम के सामने खेल रहे हो. क्योंकि बड़ी टीम को अगर आपने एक मौका दिया, आपने थोड़ी सी ढील दी तो यकीनन वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है और ये मैच भी हारना पड़ सकता है. अगदी बरोबर शाहिद खान. क्रिकेटमध्ये जर त्याला महत्व नसतं, पण यावेळेला मात्र धावबाद करण्याची एक चांगली संधी होती आणि करण याला जर धावबाद केला असतं तर अजूनही एक मानसिक दबाव निर्माण झाला साई स्पोर्ट काबरा संघावर. कारण करण हा पाहतोय आपण किल्ला लढवतोय, वन मॅन आर्मी बघायला मिळते. वन हॅज टू प्ले अँकर रोल आणि अँकर रोल करण करतोय. 21 रन. आखिरी गेंद मैंडेटरी पावर प्ले की. शॉर्ट गेंद बैटफुट पे गया, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, खेन बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. पावर प्ले. हर्षद का भी क्लास झटकता हुआ इस स्कोर के पीछे अगर हम देखें अब तो बहुत बढ़िया टोटल नजर आता हुआ. 2 ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर रन बने हैं 25. गवली सर अब रन रेट को यहाँ पर कम किया है, मैंडेटरी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है ये दोनों बैट्समैन ने. अगर हम देखिए तो 3 विकेट जरूर गवाए. 18 गेंदें 24 गेंदें अभी बची और जीत के लिए रन चाहिए 40. मतलब रिक्वायर्ड जो रन रेट है 10 का. आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी गवली सर. धन्यवाद शाहिद खान. शाहिद खान आपण बघितलं 3 फलंदाज जरी बाद झालेले असले मात्र आवश्यक धावगती जी आस्किंग रन रेट आहे तो खूप चांगला आहे. 12.5. 12.5च्या सरासरीने 25 धावा जमवल्यात. पॉवर प्लेमध्ये एक चांगली फलंदाजी बघायला मिळते. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. सागर कारभारींकडनं रिअल स्पोर्ट संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सागर कारभारी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. शमीम कंटिन्यू. यावेळी अप्रतिम चेंडू आहे आणि अपील केलं जात आहे यष्टीजित. क्या कहना चाहेंगे शाहिद खान? गवली सर मानो एक लम्हे ऐसा लगा कि जडेजा गेंदबाजी करे और महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग. कितनी बढ़िया गेंद थी, ठप्पा खाने के बाद हल्की सी टर्न हुई और वसीम अंसारी ने कोई गलती नहीं की. बिल्कुल धोनी का अंदाज और पीछे आने का मौका भी नहीं दिया था वहां पर करण को. क्या विकेट कीपिंग है, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई करण अब आउट होके वापस जाते हुए. एक गोष्ट आहे की रिअल स्पोर्ट संघासाठी डेंजरस वाटणारा करण याला मात्र यष्टीच्या रूपाने स्टंपिंगच्या रूपाने बाद केलेला आहे. असं वाटतं की करण आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जाईल. करण आणि हर्षद ही जोडी जमते असं वाटत असताना करण याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या मात्र आहे 25. 4 बाद 25. धावगती चांगली आहे पण 4 खंदे फलंदाज बाद झालेले आहेत. शमीम शॉर्ट रन अप. यावेळी मात्र चांगलं अपील केलं जात आहे. पायचीचं अपील केलं जात आहे. फक्त डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न केला होता. लेग बायचा इशारा पंचांचा येतोय. अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळते शमीम द्वारा. ये तो साफ नजर आ रहा है गवली सर के डिपेंड करना चाहते थे बैट्समैन क्योंकि उनको दबाव जरूर होगा. क्योंकि 4 महत्वपूर्ण विकेट आपकी शुरुआत की अगर जल्दी गिर जाए तो फिर यहाँ पर दबाव बढ़ जाता है. और यही देखिए आप दबाव में यहाँ पर नजर आते हुए साइज के बैट्समैन. ये मुकाबला भी रंग भरता हुआ बाली ट्रॉफी 2019 में. शमीम पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर.
त्याला शॉर्ट आर्म पूल केलेला आहे चेंडूला स्क्वेअर लेगकडे. पहिली तो अतिशय वेगात पूर्ण केली आहे, मात्र डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. ओव्हर थ्रो होतोय, मात्र दुसरी धाव किती जात नाही कारण बॅकअप केलं जात आहे. एक धाव वाढते आणि एक धाव धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 27. 27 रन एवरेज को अगर हम देखते हैं गौली सर तो बराबर चल रहा है, लेकिन विकेट को अगर हम देखें तो 4. तो यहाँ पर एक चीज है कि अब थोड़ी सी गेम को लंबा करने की कोशिश की जा रही है, सिंगल डबल से रन बनाने की कोशिश यहाँ पर यही सोच है साइज खैरबाव की. शमीम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. आतापर्यंत तरी चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. स्विच इट रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पाळ्यात येत नाहीये. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. अगदी विकेट टू विकेट गोलंदाजी बघायला मिळते शमीमद्वारा आणि चेंडूमध्ये बदल केला जातोय. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल फ्लाइट दे रहे, आमंत्रित कर रहे बैट्समैन को स्ट्रोक लगाने का, लेकिन बैट्समैन भी ये सोच रहे हैं कि सिंगल डबल से रन बनाया जाए. बहुत अच्छी गेंदबाजी. शमीम का स्पेल अगर हम देखें तो अच्छा चलता हो. अब शमीम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. लेफ्ट आर्म याला तर फ्लिक करायचा आपले चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल होण्याची शक्यता नाहीये कारण क्षेत्ररक्षक कुठलाही नाहीये. जवळपास लॉंग लेगचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत मात्र 2 धावा विरेश पूर्ण करतोय. अजहर अंसारी थे वहां पर, पहुंच नहीं पाए. गेंद तक मौका था वहां पर, थोड़ी सी गेंद हवा में थी, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलते हुए. अभी भी अगर हम देखें तो बिल्कुल 50-50 मुकाबला चल रहा है गौली सर. कट टू कट एक मनोरंजन भरा मुकाबला हम कह सकते हैं यहाँ पर बाली ट्रॉफी में. असं वाटते की बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळेल शेवटच्या षटकापर्यंत. 29 धावा झाल्या आहेत. 29. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे, प्रगतीपथावर आहे. शमीम पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न. स्वीप खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू जातोय डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. मोमीन याला मी नक्कीच नंबर 1 स्कोरर यासाठीच म्हणतोय की त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की अगदी प्रत्येक षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवर चौकार लागलेला आहे. 3 षटके बघितले, शेवटच्या चेंडूवर चौकार लागलेला आहे. तो मतलब एक चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं कि आखिरी गेंद पे प्रहार करने की सोच ली है खिलाड़ी ने. अगर हम देखें अब तो स्कोर इस वक्त 33-11 का रन रेट चल रहा है गौली सर. अभी भी मैच कट टू कट है, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए अगर हम देखें तो 18 गेंदें 32 रन. समय के मामले में ध्यान रखें कि ऑफिशियल कॉल नहीं है, अंपायर की घड़ी चालू है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं. 30 मिनट का समय और 30 मिनट में आपको आपके 6 ओवर पूरे करने. फाइट मुकाबला अगदी बरोबर. 30 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ जर आपण घेतला आणि आपण विजयी जरी झालात तर पुढच्या सामन्यामध्ये आपला कर्णधार खेळू शकणार नाहीये. पेनल्टी असणार आहे, कर्णधार खेळू शकणार नाही, लक्षात घ्यायचं आहे. विजयी संघाचा कर्णधार 30 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ जर घेतला आपण तर आपला कर्णधार पुढच्या सामन्यामध्ये खेळू शकणार नाही. नेट टू नेट फाईट, कारण 3 षटके संपलेली आहेत. 3 षटकाचा खेळ संपलेला आहे. 3 षटके बाकी आहेत आणि बरोबर निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. 33 धावा झाल्या आहेत आणि जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता आहे. बहुत बढ़िया मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है. 18-32 और 18-33 65 का लक्ष्य. रियल का क्रिकेट अगर हम देखें तो बिल्कुल रियल नजर आता हुआ गौरी सर. कहीं भी ढील नहीं दी है. हालांकि एक चीज है, आपने देखा कि जो सामने टीम है वो एक नामचीन टीम है, एक अच्छी टीम है, एक नई टीम यहाँ पर रियल अगर हम देखें. लेकिन नई टीमों का अगर परफॉर्मेंस देखिए तो कई टीमों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पे प्रभावित किया है. कई टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद हार भी गई और कई टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद जीत रही है. तो यहाँ पर एक चीज़ है कि बड़े बड़े टीमों को चुनौती है, तो ये आगे के जो पड़ाव रहेंगे तो वहाँ पर बड़े टीमों के लिए ज़्यादा चुनौती रहेगी, क्योंकि उनको और अच्छा क्रिकेट खेलना होगा अगर मैच को जीतना है. अगदी बरोबर. रिअल स्पोर्ट्स संघाने रिअल परफॉर्मन्स या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आतापर्यंत एक संघर्ष बघायला मिळतोय साई स्पोर्ट खारबाव आणि रिअल स्पोर्ट 2 संघामध्ये. गोलंदाजीसाठी येतोय आफा हर्षासाठी, मग त्या खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही कारण उजव्या खूपच बाहेर चेंडू आहे आणि पंच फारुख बाडी यांचा इशारा येतो वाईड बॉल.
धावसंख्या 1 न वाढते, धावसंख्या होते 34. अजूनही जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू आणि 31 धावा. संघर्षपूर्ण मुकाबला, कशमकश, अटीजटी. आफा तर आडव्या पट्ट्या खेळलेले चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. एका टप्प्याने चेंडू प्रयत्न केलेला आहे. दोन धावा पूर्ण होत आहेत. थोडासा बघितला अवाक्याबाहेरचा झेल होता. 2 धावेने धावसंख्या वाढते 36. आफा याला मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर जातोय. एक अवांतर धाव मिळते, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 37. बिल्कुल एक्स्ट्रा रन यहाँ पर बहुत महंगे पड़ सकते हैं रियल को, क्योंकि जब कट टू कट मुकाबला रहता है वहाँ पर अगर आप बोनस दे, आप अगर तोहफा दे तो अपने टीम के लिए महंगा पड़ेगा. आफा लेफ्ट आर्म. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू, दिशाहीन चेंडू. आणि शाहिदकार अशा प्रकारची गोलंदाजी असते ती आपल्या संघाला पराभवाकडे घेऊन जात असते, मारक ठरते. बिल्कुल दबाव. अब यहाँ पर दबाव थोड़ा सा गेंदबाज पे आ गया है, और यही रहता है कि जब कट टू कट मुकाबला रहता है, अगर आप दबाव को झेल लिया आपने तो समझो मैच को जीत लिया. लेकिन अगर दबाव झेल नहीं पाए तो फिर यही हालत होगी. आपने देखा कि 3 रन तोहफे के मिले हैं तो प्रेशर कम होता है बैट्समैन पे अगर आप इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं. 38 धावा झालेल्या आहेत, 38. यावेळेला पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू, दिशाहीन चेंडू. अतिशय खराब गोलंदाजी आणि संघावर दबाव टाकणारी गोलंदाजी. स्वतःच्या संघावर यामुळे मानसिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या धावा जेव्हा मिळतात बोनसच्या रूपाने तेव्हा संघावर एक मानसिक दबाव निर्माण होतो. बिल्कुल, क्योंकि अगर आप स्कोर हम देखते हैं तो 39 रन हुआ है यहाँ पर. अब सिर्फ 26 रन चाहिए. और अगर हम देखें तो ओवर अगर बहुत लंबा चल रहा है, अभी तक 4 वाइड गेंद, मतलब एक ही गेंद हुई है. 17-26, तब 4 रन तोहफे के यहाँ पर जो दिए वो महंगे पड़ेंगे अब रियल को. आफा पुन्हा गोलंदाजी करण्यासाठी याला फटका खेळलेला आहे. लिव्हिंग एज आहे आणि चेंडू सोपा सुंदर झेल, सॉफ्ट डिसमिसल. बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ अब हम कह सकते हैं गवली सर, क्योंकि अब तो यहाँ पर 5वां विकेट पवेलियन लौट चुका है. और एक चीज है, 5/39 साईज फोल खारबावला. खारबावचा पण्या याने हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पण्या नक्कीच स्थिती 50-50 आहे. पण्या आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण जे शुभेच्छा दिलेल्या आहेत त्या आम्ही पोहोचवतोय साई स्पोर्ट संघापर्यंत. इस वक्त हमारे बीच में हमारे उस्ताद अकील सर यहाँ पर आते हुए, उनका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2019 में. वेलकम अकील सर. अभाग पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी स्क्वेअर मारल्यानंतर मात्र एक महत्त्वपूर्ण सफलताही प्राप्त करून दिली आपल्या संघाला. हा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. हे षटक लांबणार आहे. बिल्कुल. धाव मिळते. खराब गेंदबाजी. जब आप विकेट लेने के बाद अगर इस तरीके की गेंद करे गवली सर, तो मैं कहूंगा कि ये खराब गेंदबाजी है. लगातार 5वां वाइड, मतलब 5 रन तोहफे के यहाँ पर दिए हैं. बोनस अभी खारबाव को तो जरूर मिला है, लेकिन देखना है बोनस मिलने के बाद अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ फायदा नहीं. अभाग पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. लेफ्ट आर्म. यावर मात्र बॅटला स्पर्श करून चेंडू गेला होता. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला. एक चांगला चेंडू म्हणता येईल. 1 धाव मात्र मिळते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 41. 41 रन हुए. 24 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए. बिल्कुल कट टू कट मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है. अगर देखिए इस ओवर में तो
3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी बाकी है, 3 गेंदें और उसके बाद बहुत अहम रहेगी। अफाक यावर फटका खेळलेला आहे, चेंडू जातोय लॉंगॉन सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी षटकार आणि आता मात्र मानसिक दबाव कमी होणार आहे साई स्पोर्ट खारबाव संघावरला। पूरा प्रेशर खत्म कर दिया इस सिक्सर ने, मैं कह सकता हूं कि खारबाव स्पोर्ट्स के, क्योंकि बहुत सही समय पे जब एक बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत थी और वो उस स्ट्रोक को लगाया बैट्समैन करण ने। क्या स्ट्रोक है, आपने देखा गौली सर के इस तरीके के स्ट्रोक हम देखते हैं खड़े खड़े जो खेले जाते हैं वो ताकत के बलबूते पे खेले जाते हैं, और वही था ताकत, टाइमिंग और गेंद मैदान के बाहर 6 रन। षटकाराने आता मात्र धावसंख्या वेगाने वाढते, धावसंख्या झाली 47, 47। अपाक महागडा ठरतोय, याला एक चांगला चेंडू आहे, यावेळेला मात्र पूर्णपणे बीट केलेला आहे, कुठल्या प्रकारे धाव नाही, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे, धावसंख्या थांबलेली आहे, धावसंख्या 47, 47। 13-18 का इक्वेशन है, बहुत ही कट टू कट मुकाबला चल रहा है। इस बीच ये गेंद बैट पर चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 1 रन। 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे। कृपया या ठिकाणी वॉंग केलेला आहे इथे पंचांनी, खेळपट्टीवरनं जे धावतायत, खेळपट्टीवरनं जे धावले आहेत फलंदाज त्यांना वॉंग केलेला आहे आणि त्या पेनल्टीचा सामना करावा लागेल, वॉर्निंग दिलेला आहे पंच फारुख बाडी यांनी। बिल्कुल, हम एक बार वार्निंग जरूर देते हैं खिलाड़ी को, उसके बाद फिर पेनल्टी, कई टीमों ने पेनल्टी दी और ऐसे सिचुएशन में पेनल्टी नड़ सकती है। देखेंगे अभी भी एक चीज़ तो है यहाँ पर गौली सर कि 4 ओवर की समाप्ति, अब पल्ला थोड़ा सा भारी ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन 12 गेंदें जीत के लिए 17 रन, और ये मैच भी काफ़ी मज़ेदार होता हुआ। और यहाँ पर आप करण पे बहुत को डिपेंड है, क्योंकि एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और यहाँ पर सोच समझ की बल्लेबाजी करनी होगी, देखना है उस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं नहीं। 48 धावा झाल्या आहेत, मात्र धावांचा पाठलाग ज्याप्रमाणे व्हायला हवा त्याप्रमाणे बघायला मिळतोय, कारण आस्किंग रन जर 11च्या घरात असताना जवळपास 12च्या धावा सरासरीने धावा जमवलेल्या आहेत, 48 धावा जमवल्या आहेत। आता मात्र 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता, अजूनही सामना 50-50 अवस्थेमध्ये आहे, कारण निम्मा संघ गारच झालेले आहे, 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत, दोन्हीचे फलंदाज खेळपट्टीवर आहे, दोघांकडे एक क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची आणि खेळपट्टीवर टिकून राहण्याची। बॅटिंग पॉवर प्ले पंचांचा इशारा आहे आणि योग्य वेळी बॅटिंग पॉवर प्ले। बैटिंग पावर प्ले। हमारे बीच में मोहतरम नदीम शेख के वालिद मोहतरम हाजी आलिमुद्दीन साहब आ चुके हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मैच रेफरी रमीज़ रईस की दुख्तर अख्तर जीनी और एम हसन फरजंद दोनों का इस्तकबाल। बॅटिंग पॉवर डाऊन द ग्राउंडचा फटका, चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल होते का बघायचं, 2 षटक धावतायत, मला झेल घेऊ शकला नाहीये, 2 धावा पूर्ण होत आहेत, 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्याने धावसंख्या झालेली आहे आणि ह्याच बरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत। टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, 50 धावा पूर्ण होत आहेत। आता मात्र जिंकण्यासाठी जी आवश्यकता आहे 11 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे, 11 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे। यावेळेला मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउंस झाला, शॉर्ट बॉल होता, फायदा उचलता आलेला नहीं। देखिए साइंस स्पोर्ट खारबाव गौली सर पलट के वार किया, हालांकि शुरुआती दौर में काफ़ी कठिनाइयों में थी, बहुत सस्ते में आउट हुए थे प्रणय पाटिल। सीजन के जो 17 अर्धशतक लगे, 18 अर्धशतक लगे, उसमें 2 प्रणय ने लगाए और 2 श्याम चौधरी ने। लैलिश
यावर मात्र शॉर्ट ऑन पूल केलेला आहे चेंडूला मिड विकेटला पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहे उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये तालमेल बघायला मिळते समन्वय बघायला मिळतोय कप्तान वसीम अंसारी थोड़े से नाराज हैं जिस तरह का यहाँ पे फील्डिंग हम देख रहे हैं। देखना है कि रियल क्या पलट के वार करके मैच को हासिल करती है। साइंस स्पोर्ट खरबाओं की अगर हम बात करते हैं गौली सर, तो ये टीम 2 मरतबा इस सीजन में सेमीफाइनल खेली है और अगली टीम को आप देखने जा रहे हैं। नाना स्पोर्ट वन द टॉस, डिसाइडेड टू दी बैट फर्स्ट। लैलेश यानंतर बॅटला स्पर्श करून चेंडू जाते डीप थर्ड मॅन क्षेत्ररक्षक पाठला करतोय मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी चौकार। देखिए गौली सर, आज गेंदे बिहाइंड दी विकेट विकेटों के पीछे ज़्यादा गई। आज कम से कम साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 10 ऐसे चौके हैं जो थर्ड मैन और फाइन लेग के क्षेत्र में गए हैं और जब बिहाइंड दी विकेट गेंदे जाती है तो मैच पीछे चला जाता है। पायनियर के एक्स हार्ड हिटिंग बैट्समैन तस्लीम हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तेकबाल है। जिन्हें कहा जाता था जब शॉट खेलते थे तो गेंद आसमान में गोटी नजर आती थी, बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक का प्लेयर रह चुके हैं। चौकाराने धावसंख्या वाढलेली 56। लैलेश कोणाच्या डोक्यावरनं फटका खेळलेला आहे सुरक्षित फटका ज्याला संबोधलं जातं चेंडू जातोय सीमारेषेकडे 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 3 धावाही पूर्ण होत आहेत। गिरती पड़ती फील्डिंग थी वहां पर। एकोणसाठ धावा झाल्या जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे। आता मात्र असं वाटते की विजयाकडे वाटचाल करतोय महेंद्र पाटील फॅम टीम साई स्पोर्ट खारबाव, कारण 8 चेंडू आणि यावेळेला मात्र इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि अराउंड दी लेग त्रिफळाचित। मैं कई बार कहता हूं कि क्रिकेट में कहा जाता है कि बैट्समैन को पता चाहिए उसका ऑफ स्टंप का है, लेकिन मैं कई बार अब टेनिस क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसको पता चाहिए बैट्समैन को कि उसका लेग स्टंप का है। लेकिन ये तो रिवर्स शॉट खेले थे वहां पर। आता मात्र इक्वेशन जे आलेले आहे 6 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे आणि नक्कीच मी माईक सुपूर्द करणार आहे। जेव्हा बऱ्याचशा वेळेला कित्येक स्पर्धेमध्ये अशा प्रकारचे इक्वेशन आलेलं आहे तेव्हा चॅलेंजिंग समालोचने ज्यांनी केलेलं आहे मी माईक सुपूर्द करतोय माझे सहकारी समालोचक माझे परम मित्र व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीकजी भावे। बहुत बहुत धन्यवाद द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, गौली सर एक ऐसे कमेंटेटर हैं जिनके बारे में महेश तिवारी नेशनल कमेंटेटर और साथ ही साथ सुशील दोषी ने कहा था कि उनमें बहुत टैलेंट है। अंपायर फैज़ रईस को और अंपायरिंग पैनल को नू बगदादी ने कॉम्प्लीमेंट दिए। नू बगदादी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नू बगदादी क्रिकेट के बहुत बड़े चहेते हैं, लेकिन उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके मैसेजेस भी इसलिए पढ़ नहीं पाया क्योंकि मोस्टली मुझे अपना मोबाइल ऑफलाइन रखना पड़ रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है, आप सभी का प्यार अल्ताफ बाली तक पहुंचाया जाएगा। इस मरतबा गेंद को घूम के मारा है, गेंद जा रही है मैदान के बाहर और यहां पर बाली ट्रॉफी के बाहर जाती हुई रियल स्पोर्ट। हार्ड लक वसीम अंसारी एंड रियल स्पोर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन महेश ठाकरे द कैप्टन ऑफ साइंस एंड साइंस स्पोर्ट।
आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है और बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के में बाली ट्रॉफी की बाहर मलके आवाज को एंकर पूजा सिंह हमसे जुड़ चुकी है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम पूजा टुडेज आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सिद्दीक जी। तो मौका भी है और दस्तूर भी, छाया है बाली ट्रॉफी का सुरूर भी, और इसी सुरूर में मैं आपकी को होस्ट पूजा सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पायोनियर स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट बाली ट्रॉफी 2019, द थ्रिल इज बैक। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल एंड साइंस स्पोर्ट खारबांव, हार्ड लक वसीम अंसारी, हार्ड लक रियल स्पोर्ट। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने जा रहा है और सबसे पहले हम अपने तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे। बढ़ते हुए हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स DY डेवलपर्स, अमान ग्रुप, O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पल्लंस एक्रेलिक आर्ट 2, तारिक रईस बिल्डर एंड डेवलपर्स, भिवंडी वाला डेवलपर्स, बोबरे ट्रेडिंग को डॉट, बिस्मिल्ला मोटर्स, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, SS सलमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मैगी 11, भारत गैस असफर बोलिंजकर, कपिल पाटिल फाउंडेशन, नाइक इंटरप्राइजेस, गौरी फोम सेंटर एंड गादी कारखाना, फकीज द चिक शॉप, मदनी मोबाइल, डी सकारिया ट्रेडिंग, चोचाज अखाड़ा एंड A1 चिकन सेंटर। We also the thankful Five Fortune Realtors, Royal Builder and Developer, Myth Foundation, Shiv Graphics, Musa Group, Siddh Kala Dealers, Showroom of Electric Vehicles, Real Steel Traders, Variety Super Bazaar, Mayuresh Enterprises, Six and Out Sport, मुनाफ शेख। इस बीच हमारे बीच अल्ताफ बाली के वालिद मोहतरम इमामुद्दीन शेख साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। SK बिल्डर एंड डेवलपर, मुरुनमई लिफ्टर्स, हाजी स्टार कूलर, श्री अंबिका टेक्सटाइल, माइक्रो टच इलेक्ट्रस, रोलेक्स मेडिकेयर, पूर्वा कंस्ट्रक्शन, रवि सावंत, लापास बुटीक एंड MJ फैब्रिक। थैंक्स टू ऑल our sponsor, they done outstanding support for Bali Trophy. And thanks to Mr. Altaf Bali, Ajmal Nasikar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club for organizing this wonderful event. And before we start our prize distribution ceremony, I would like to call our honorable guests. बिल्कुल, अभी हमसे जुड़ चुके हैं इज्जत माब इमामुद्दीन शेख साहब। आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम इज़्ज़त माब इमामुद्दीन शेख साहब, अकील सर आलिमुद्दीन शेख साहब, नदीम शेख के वालिद मोहतरम, एंड फ़क्की आशिर, आदेश पाटिल, विक्की माडवी और कादिर मेमन। अभी भी हमारे 3 मौजूद मेहमान का आना बाकी है, उसके बाद हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या बात है, हमारे बीच दोनों जुड़ चुके हैं, अल्ताफ बाली के वालिद मोहतरम भी और ससुर साहब।
रफीउद्दीन शेख साहब, मोस्ट वेलकम। सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है बाली ट्रॉफी 2019 में। और नासिक से आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान फिरोज खान साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे बुजुर्ग जिनकी दुआएं हमारे साथ है, अल्ताफ बाली के वालिद मोहतरम इमामुद्दीन शेख साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और अलीमुद्दीन शेख साहब, नदीम शेख के वालिद मोहतरम, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और अल्ताफ बाली सर के ससुर मोहतरम रफीउद्दीन शेख साहब, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और तमाम मान्यवर्स का। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कैच ऑफ द मैच, खिलाड़ी हैं साइंस स्पोर्ट के वीरेश। इस इनाम को स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी और मॉडर्न टैलेंट कंप्यूटर डिस्काउंट ने। मैं मोहतरम रफीउद्दीन शेख साहब अल्ताफ बाली के ससुर से कहूँगा कि गौरी फॉर्म सेंटर का ये खूबसूरत तकिया जो आपको चैन की नींद सुलाए। हमें खुशी है कि आप बाली ट्रॉफी में आए हैं और आपके दामाद ने पूरे हिंदुस्तान में एक तारीख मरतब की है। अब मॉडर्न टैलेंटेड कंप्यूटर का डिस्काउंट देने के लिए हमारे बुजुर्ग इज्जतमाब इमामुद्दीन शेख साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये डिस्काउंट वाउचर आपको देना है। ये आप देख सकते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और उनके बेटे ने तो सारी दुनिया में नाम किया है। सही कहा है सिद्दीक जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वीरेश। आइए, शॉट ऑफ द मैच। क्या शॉट है? वैरायटी सुपर बाजार ने वैरायटी शॉट को स्पॉन्सर किया है। आसिफ मेमन साहब, हमारे खिलाड़ी का नाम है करण। करण साइंस स्पोर्ट, करण साइंस स्पोर्ट, आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। करण बल्लेबाजी को कौन से गए थे? दोनों गए थे। साहिबा, ये कौन से करण है? शॉट किसने अच्छा खेला है? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस करण। मोहतरम अलीमुद्दीन शेख साहब, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि आपके हाथों से हम ये वैरायटी का वैरायटी नमूना दे रहे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन करण, यू प्लेड अ शॉट ऑफ द मैच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अलीमुद्दीन शेख साहब। आइए, बाली सुपर 4। बाली सुपर 4 में 3 बहुत खूबसूरत चौके लगाए। वह हैं रियल स्पोर्ट्स के कल्पेश सीनियर, रियल स्पोर्ट कल्पेश सीनियर। हमारे बीच नासिक से तशरीफ लाए हुए मोहतरम फिरोज खान साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको लापाज बुटीक का ये टी शर्ट देना है कल्पेश सीनियर को। मास्टर आशिर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी और मनसब मुल्ला की इस देन को देना है किट बैग। मैंने हार्ड लक। कल्पेश, ज़रूर पूछना चाहूँगा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, गलतियाँ कहाँ हुई? फील्डिंग भी मिस हुई, फील्डर इधर उधर हो गई। आपको लगता था आपने जो टोटल रखा था वो अनचेसेबल था? यस, हम लोग अच्छे खेले और मेहनत करें। बाली ट्रॉफी को कैसा रियल ने एंजॉय किया? हम लोग को मौका मिला, यही बड़ी बात है, आगे और अच्छे खेलने। मैनी हार्ड लक। कॉन्ग्रेचुलेशंस कल्पेश सीनियर। आइए दोस्तों, बाली सुपर 6 और बाली सुपर 6 में 2 सिक्सर लगाने वाले करण।
ये दो दो करण लेके आए हैं और मैच में भी करण था। फिर से मैं हमारे इज्जतमाब इमामुद्दीन शेख साहब आपसे मैं इल्तिमास करता हूं कि तारिक रईस मशहूर और मारूफ बिल्डर स्पॉन्सर ये रिस्ट वॉच देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुकना है करण, 3 इनामात हैं। विक्की मडवी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको फैशन की दुनिया में अगला कदम फ़की बुटीक मोहम्मद फ़की का स्पॉन्सर ये शर्ट देना है। आइए अब हमारे बहुत काबिल दोस्त कादिर मेमन आपको देने जा रहे हैं सिद्ध कला डीलर्स परेश भानुशाली की देन, इलेक्ट्रिक बाइक का और व्हीकल का एक ही नाम, सिद्ध कला डीलर्स। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया कादिर मेमन साहब। Congratulations, Mr. Karan, once again for winning Super Sixes. अब आखिरी पैदान जो इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द मैच, इसे स्पॉन्सर किया है शोराब खान उर्फ राजा भैया, एसके बिल्डर एंड डेवलपर। खिलाड़ी का नाम है 2 ओवर किए 13 रन लिए 3 विकेटें ली, वो हैं सीधे साधे नहीं बहुत अच्छे अक्षय। Congratulations, Akshay, for winning the man of the match this wonderful afternoon. आइए अल्ताफ बाली सर के ससुर रफ़ीउद्दीन शेख साहब से मैं इल्तिमास करता हूं कि आपके हाथों से हम अक्षय को ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, शोराब खान स्पॉन्सर। नदीम शेख के वालिद मोहतरम अलीमुद्दीन शेख साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है। नासिक से आए हुए हमारे मेहमान मोहतरम फिरोज़ खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आपके हाथों से शोराब खान स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर हम आपको देने जा रहे हैं। आदेश पाटिल जी, आपसे निवेदन है कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है। जैन फ़की के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। और ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स स्पॉन्सर करने के लिए शोराब खान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अकील सर, आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मर क्रिकेटर है, पायनियर के लिए खेला भी है, इनके हाथों से हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आइए हमारे बीच अब बने रहेंगे इज्जतमाब इमामुद्दीन शेख साहब, अलीमुद्दीन शेख, रफ़ीउद्दीन शेख साहब और फिरोज़ भाई। बाकी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वीआईपी की जिन्नत बनना है। बाकी तमाम मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीआईपी डाइस पे जाना है। देखिए, जो इनाम देने जा रहे हैं पूजाम, वो है रोलेक्स मेडिकेट का सिल्वर कॉइन, और उसको देने जा रहे हैं इज्जतमाब अलीमुद्दीन शेख साहब। लेकिन आपके भतीजे ने गोल्ड मेडल पहनने वाला टूर्नामेंट किया है, ये आप दे सकते हैं उनको। आइए मैं अल्ताफ भाई के ससुर और हमारे मेहमान फिरोज खान साहब दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जेडपी सदस्य अशोक घरत स्पॉन्सर ये फलों की टोकरी देना है, फ्रूट बास्केट विद विटामिन ए बी सी डी, खा के स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आखिर में इज्जतमाब हमारे बुजुर्ग जिनकी दुआएं हमारे साथ है, अल्ताफ बाली के वालिद मोहतरम इमामुद्दीन शेख साहब के हाथों से हम पल्लन की एक्रेलिक आर्ट की ट्रॉफी देने जा रहे हैं, एक्रेलिक आर्ट 2। और ये ट्रॉफी जिसके लिए ये टीम्स बहुत मेहनत करती हैं। बहुत 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 शुक्रिया। कड़ी धूप में आपने इनामात से नवाजा, खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की, हमारे तमाम बुजुर्ग
मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अक्षय। वैसे आप दिख तो रहे सीधे साधे, पर हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। नहीं, पहले बता ही दीजिए कि आप सीधे साधे अक्षय हैं या बहुत खतरनाक गेंदबाज अक्षय? सीधे अक्षय कैसा लग रहा है? पहला मैन ऑफ द मैच किसी सपने से तो कम नहीं रहेगा बाली का। सपने से सही है, आप उनसे बात कीजिए। जी सिद्दीक सर, ऐसी कोई बात नहीं आहे. अक्षय, मी तुला फक्त एक क्वेश्चन विचारणार आहे. तू हा ट्रॉफी कोणाला डेडिकेट करणार? माझ्या टीमला आणि महेंद्र पाटीलला. कोणाला? स्पॉन्सर आमचे महेंद्र पाटील. ओके, महेंद्र पाटिल जो इनके स्पॉन्सर है उनको शुक्रिया करना चाहूँगी. एंड इसी तरीके से खेलते रहो, अगले साल भी आओ, मैन ऑफ द मैच जीतो, फाइनल जीतो. मैंने Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय. तो दोस्तों, मैं हूँ सिद्दीक बाबे को एंकर मलके आवाज़ पूजा सिंह के साथ आपको वापस लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस. आज बाली ट्रॉफी की शान और शौकत बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे बीच अल्ताफ बाली सर के वालिद मोहतरम इमामुद्दीन शेख साहब, चचा आलिमुद्दीन शेख साहब, उनके ससुर रफ़ीउद्दीन शेख साहब